मजूर आम्हाला आमच्या गावी पाठवा अशी मागणी करू लागलेले आहेत। धन्यवाद अजित, माहिती दिल्याबद्दल। थेट जाऊया नवी दिल्लीला, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाची पत्रकार परिषद। आपको जान के खुशी होगी कि इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्पेशली मजदूरों की समस्याओं के निदान के लिए पूरे देश में 20 ग्रीवेंस सेंटर्स को स्थापित किया है। इन ग्रीवेंस सेंटर्स की फंक्शनिंग को चीफ लेबर कमिश्नर के स्तर पर सुपरवाइज और मॉनिटर किया जा रहा है। हेल्पलाइंस की विस्तृत जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन हेल्पलाइंस का उद्देश्य है कि पीड़ित मजदूरों को समयबद्ध तरीके से राहत मिल सके। हमारी आशा है कि इन कदमों के साथ हम लॉकडाउन मेजर्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हुए जनता की तकलीफों को दूर कर सकेंगे। Representative of Ministry of Finance. I'm going to provide the progress made so far on the Pradhan Mantri Garib Kalyan package of rupees 1.70 lakh crore announced by Union Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji on 26th March to ensure that the weaker section of the society continues to get the basic amenities and are not impacted during the lockdown period due to the COVID-19. The swift implementation of the package is being continuously monitored by the central and state governments, finance ministry, the concerned ministries, cabinet secretariat and PMO. As on 13th April 2020, yesterday, the more than 32 crores beneficiaries have been directly given cash support through DBT amounting to rupees 29,352 crore under the package. In addition to the point made by my colleague of MHA, another point regarding is under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, the government has distributed free ration of food grains to 5.29 crore beneficiaries. 3,985 million tons of pulses have also been dispatched to various states and union territories for distribution. More than 97 lakh free Ujjwala gas cylinders have been delivered to beneficiaries under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. 2.1 lakh members of EPFO have taken benefit of online withdrawal of non-refundable advance from EPFO account amounting to rupees 510 crore. Rupees 14,946 crore have been transferred to 7.47 crore farmers towards first installment of PM Kisan. Rupees 9,930 crore has been disbursed to 19.86 crore women Jan Dhan account holders through DBT. Rupees 1,400 crores has been disbursed to about 2.82 crore old age people, widows and disabled persons under National Social Assistance Program. More than 2 crore building and construction workers have received financial support amounting to rupees 3,071 crore. The detailed press release relating to this PM Garib Kalyan package is available on the PIB website, which I will request you to get access to that. Thank you. Representative from the ICMR, please. Until yesterday, we had tested 2,31,902 samples so far. कल 21,635 सैंपल टेस्ट हुए, उनमें के 18,644 यानी 18,644 वेयर इन ICMR नेटवर्क ऑफ लैब्स, 2,991 2991 were from private labs. As of now, we have 166 labs under the ICMR network. 70 labs which were belonging to private sector, they have already been approved as of now. With respect to, as I said, the kits that we have,
we yesterday mentioned to you that we have kits that could last for 6 weeks. We have received another installment for RT-PCR kits, which are far more sufficient in numbers, which would essentially mean that we would be able to cover ourselves for a pretty long period of time. Additionally, we are ordering close to about 33 lakh kits for RT-PCR, and 37 lakh rapid kits are expected to come at any point in time. Now Ministry of Health representative, please. अब तक 218 से अधिक लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स के द्वारा अराउंड 377.5 टन इसेंशियल मेडिकल कार्गो इसको देश के दूर दराज इलाकों में पहुंचाया जा चुका है, जिसमें भी हमारा फोकस प्राइमरली रहा है नॉर्थ ईस्ट प्रांतों में, आइलैंड टेरिटरीज में और हिल स्टेट्स में। इसके साथ ही इंडियन पोस्टल नेटवर्क ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ऑनलाइन फार्मा कंपनीज के साथ टाई अप करते हुए हॉस्पिटल्स और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को भी डोर स्टेप पर उन्होंने इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मेल्स के माध्यम से मेडिकल डिलीवरीज को पहुंचाने का कार्य किया है। हमारे जैसे इससे पहले कि हमारे कुलीग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया, उसके साथ ही आज फील्ड लेवल पर हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वह बैंकों के साथ काम करते हुए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी या बैंक सखी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, प्राइम मिनिस्टर किसान योजना अकाउंट्स और एम्प्लॉयर गारंटी स्कीम के तहत जो पेमेंट है उसको फील्ड लेवल पर लोगों को बैंक में जाए बिना उनको वह धनराशि दी जा सके, उसके लिए अपना सहयोग दिया है। इसके साथ ही ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, उन्होंने उनके ऑफिस से एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें मुख्यतः घनी आबादी यानी कि हाई डेंसिटी वाले जो एरियाज हैं, जैसे कि हम मुंबई का धारावी प्रांत ले लें या कोई और ऐसे एरियाज ले लें, दिल्ली के एरियाज ले लें, उसमें कोविड के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए किस टाइप के स्टेप्स लिए जाएं उसके बारे में एक गाइडलाइन दी है, जिसमें मुख्यतः कम्युनिटी शेयर टॉयलेट, सैनिटेशन और हाइजीन सॉल्यूशंस कम खर्चे में कैसे ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब तक की अगर डिटेल्स देखें तो अब तक टोटल 1036 पीपल क्योर हो चुके हैं। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कल एक ही दिन में 179 पीपल हैव बीन डायग्नोज्ड एंड फाउंड क्योर्ड, और अब तक की टोटल संख्या अगर देखें तो 10,363 कंफर्म केसेस देश में आए हैं, और जिसमें कि कल एक दिन में 1,211 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। टोटल 31 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं कल से आज तक, जिसको लेकर टोटल डेथ की संख्या 339 हो चुकी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस करते हुए देशवासियों से कहा है कि हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए हमने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने बताया है कि भारत ने अपने होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत काम करते हुए समय पर एक डिसीजिव एक्शन लिया, जिससे कि समस्या के हमने बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बट हमने प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन लिए हैं। उन्होंने इसके साथ ही कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने के बारे में भी बताया। 20 अप्रैल तक देश के हर शहर, हर जिले का एक इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि किस जिले और किस शहर ने कोरोना स्प्रेड से संबंधित क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरह से अपने को बचाया है। इस टेस्ट के द्वारा, इस लिटमस टेस्ट के अप्रोच के द्वारा उन सेलेक्टेड एरियाज में जहां पर की स्थिति को अच्छे ढंग से नियंत्रण किया गया है, कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज की अनुमति भी दी जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा डिटेल्ड गाइडलाइन जल्दी ही इशू की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि लॉकडाउन मेजर्स का सही ढंग से पालन नहीं किया गया और उस प्रांत में वायरस के फैलने का खतरा है, तो क्योंकि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, तो जो भी सहूलियतें या जो भी एक सेलेक्टेड एक्टिविटीज की परमिशन दी जाएगी वह विड्रॉ भी की जा सकती है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि दवाइयाँ, फूड राशन और इसेंशियल कमोडिटीज के संबंधित एम्पल रिजर्व भी फील्ड लेवल पर इंश्योर किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों से 7 चीज़ों पर समर्थन की अपील की, जिसमें उन्होंने मुख्यतः कहा है
कि हमें सबको अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है, विशेषकर कि वह बुजुर्ग जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज है। साथ ही उन्होंने बताया कि लॉकडाउन मेजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग को हम 100% पालन करें, अपने जीवन में एक बिहेवियरल चेंज के रूप में हम सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट करें, साथ ही होममेड फेस कवर या मास्क का इस्तेमाल करें। आयुष मंत्रालय द्वारा गर्म पानी और काढ़े के सेवन के सजेशन को भी उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके द्वारा कि हम अपनी इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं। कोरोना इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने की मदद के लिए उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की विनती भी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर एफर्ट करना है कि गरीब परिवारों की फूड रिक्वायरमेंट्स का हम ध्यान रखें। अपना बिजनेस या अपनी इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी जो हमारे सहभागी हैं, उनका भी हम कंपैशनेट भाव से ध्यान रखें कि उनको कोई भी लाइवलीहुड से वंचित रहने की स्थिति में जो दिक्कत है उसमें हम उनको सहयोग प्रदान करें। हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, सैनिटेशन वर्कर्स, पुलिस स्टाफ, उन सबको उन्होंने इससे पहले भी जैसे कहा है, उन्होंने कहा हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करें। और अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से आग्रह किया कि हम जहां हैं वहीं रहें और हर तरह से सुरक्षित रहें। इसके साथ ही जैसे कि आपको इससे पहले भी मैंने अवगत किया है कि हमारा एक एफर्ट रहा है कि हम इस पूरे समय में अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं और उसके तहत अब 602 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जिसमें 1,06,719 आइसोलेशन बेड्स हैं और 12,024 आईसीयू बेड्स हैं, वह हम तैयार कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से। इस नंबर में भी निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस विषय में काम कर रहे हैं। इसी से संबंधित किए हुए एफर्ट्स के संबंध में जैसे कि एम्स दिल्ली में एक इनिशिएटिव लेकर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, मैं उसके बारे में आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में केंद्र सरकार ने शुरू से ही तमाम एजेंसियों को ये सुनिश्चित करने को कहा कि डेडिकेटेड कोविड अस्पताल समय की मांग है और इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची आणि गृह मंत्रालयाची पत्रकार परिषद कालपासून आजपर्यंतचे काय अपडेट्स आहेत, किती कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली आहे आणि काय व्यवस्था आपण अजून आणतो आहोत, या सगळ्या अनुषंगाने संवाद साधला गेला, माहिती दिली गेली। एक छोटासा ब्रेक, लगेच भेटू। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।